is it for you that Ayurveda is a preventive medicine or it should be considered as a curable medicine as well? It's both. It's a way of life. हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम, ऐसे आयुर्वेद की व्याख्या है कि हितकर क्या है और अहितकर क्या है, सुखकर क्या है और दुखकर क्या है, ये जो साइंस बताता है वो आयुर्वेद है। तो अगर हितकर जो बोला गया है या जो सुखदायी चीजें जो बोली गई हैं वो अगर डे 1 से फॉलो की जाए तो इट्स अ प्रिवेंटिव साइंस। और एक बार आपको वो इन्फेक्शन हो चुका है या बीमार हो चुके हैं, तब जो क्योर के हिसाब से जो आता है, इट इज अ क्योर। आयुर्वेद इज अ क्योर, सो इट इज बोथ। It's a way of life. Now, if I talk about the clinical aspect of Ayurveda, the acceptability is very less. Because आज की तारीख में लोगों में शायद पेशेंस नहीं है या लोग इमीडिएट एक्शन चाहते हैं. So major there is a race for the allopathy medicine first. जी. जबकि हम जानते हैं आयुर्वेदा की क्या बेनिफिट्स हैं और लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स हमें दे सकते हैं. सो ये जो डिफरेंशिएशन है आयुर्वेदा एंड एलोपैथी में, क्या आज की तारीख में आपको दिखता है कि इसकी जो रुझान है ये पहले से बेहतर है और आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, बट और बहुत एजुकेशन का ज़रूरत है लोगों में आयुर्वेद को लेके। सी, लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट, नोबडी हैज़ द टाइम टू सिट, रिलैक्स, थिंक, मॉडिफाई देयर लाइफस्टाइल, क्योंकि एक रेस में आदमी अटक चुका है। इसमें यू डोंट हैव, सो जो अपना बेसिक है, like eating food in a better way, how to drink water, एक कुछ basic lifestyle changes जो है, that has become luxury now. Today it is having 90,000 crore company as Ayurveda, and we are expecting to have 1,20,000 crore company in Ayurveda. That means there is an exponential growth जो expect किया जा रहा है. There are 5-6 players majorly who play this major role. क्या आयुर्वेदा का जो उत्पाद है वो इतना हो सकता है पॉसिबली नेचुरली कि हम इतनी चीज और इतना मार्केट को ग्रो करने में हेल्प कर सके इंडिया में? प्योर काम अगर करना है और एक्चुअल हर्ब्स जो ग्रंथों में मेंशन्ड है वही सब हर्ब्स लेके अगर करना है तो येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मीट दैट डिमांड, बिकॉज एनी टाइम एंड एवरी टाइम व्हेन यू से कि जो ग्रंथ में जो हर्ब्स मेंशन्ड है, जो प्रपोर्शंस मेंशन्ड है, जो क्योंकि इट इज़ वेरी the shlokas or the granthas are very particular कि आपको कोई भी herb यूज करनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा कि उसको कैसे यूज करना है, वो कैसी होनी चाहिए, उसके रूट्स कैसे होने चाहिए, उसके लीव्स कैसे होने चाहिए, फिर उसको क्या प्रमाण में यूज करना है. देयर इज एन एंटायर प्रोसेस दैट हैज टू बी फॉलोड कि उसको प्रोसेसिंग जो होता है उसका पूरा टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट. Hi, this is Indranil and welcome back to the channel The Spotlight Beyond Profession, India's first online business news channel. Today in our channel, we are having a podcast with Dr. Veena Nayak. Dr. Veena Nayak is an Ayurvedic medicine practitioner and she is also the founder of the brand Spand. Spand is a brand where there are a lot of products which are available and she developed those products by herself. So please watch this entire podcast because you will be having a lot of insights about healthy living. Along with that, you will also come to know that what kind of product she is developing and ये सारे product कहाँ पे और कैसे available है. Before that, please subscribe our channel and also get the updates from our site. And also visit our website www.tsbp.in. In our website, we cover all business related stories and we also cover startups and entrepreneur stories as well. सिर्फ यही नहीं, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस आइडिया को भी पिच कर सकते हैं. By pitching your business idea through our website, you will be getting larger audience and you will be visible to the world. So please get that benefit by pitching your business idea in our website www.tsbp.in. First of all, thank you very much, ma'am, for giving us your time and welcome to our channel, The Spotlight Beyond Profession. And today in the podcast, you are obviously under the spotlight and we name it Beyond Profession because in this entire podcast, we will try to understand more about your journey, how you started and what are your vision and mission that you are going for.
And before I deep dive into it, I have two disclaimers. Number one is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. Okay. So whenever I try speak in Hindi, you can laugh at me. I don't mind. I'm quite a bit habitual. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask anything and you don't want to address or answer, you can directly say no. There is nothing like avoiding because our podcast is completely unscripted, uncensored, and unfiltered. Okay. So now come to the point. Before getting into all details about you, we just try to understand something about your base. आपने कहाँ से शुरू किए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, एंड हाउ यू एंटर्ड इनटू आयुर्वेदा. सो अगर उस बेस के बारे में थोड़ा सा हमें अगर बता दें. जी, मेरा जन्म मुंबई का है. Okay. एंड born and brought up in Mumbai. I did my graduation in Ayurved from Pune. My parents wanted me to take up medical studies, and I was always a Bharatanatyam dancer, so wanted to do something Indian. So Ayurveda was the obvious choice. I landed up in a fantastic place, Pune, जहाँ पे आयुर्वेद का बहुत exposure मिलता है. Okay. So apart from college, we used to attend clinics जहाँ पे you work as observers, so you get to observe Ayurvedic practitioners very closely, and that is the actual learning is what I realized. Studied Ayurved from Pune, worked in Mumbai for a year, and then got married and settled in Indore. So I've been practicing Ayurved for more than 16-17 years now. Okay. So what was your journey from Indore? मतलब कब आप इंदौर में आए? Indore I came in 2006. Okay. Yeah, so 2006 में आने के बाद immediately clinic start नहीं किया था. आयुर्वेद practice तभी कर रही थी, लेकिन clinic तब setup नहीं था. Okay. You know, I was just working on my, it was a new city, शादी हो गई थी, so I was just working on the foundation of my marriage, and it worked out really well for me. Started practicing after 3 years, but then had to shut down my clinic again because बच्चे हो गए थे. But still Ayurved नहीं छूटा. Both my kids are 100% Ayurvedic kids, and no calcium, no iron, nothing. So I've been practicing Ayurveda day in, day out. This clinic was set up in 2015. Yeah, so आयुर्वेद ही ऐसा कुछ फैमिली में कुछ बैकग्राउंड था जिसके वजह से आयुर्वेद के ऊपर ज़्यादा आपका इंटरेस्ट था, या आयुर्वेद वाज एन एक्सीडेंटल थिंग फॉर यू? नो, ऐसा कोई फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है आयुर्वेद का. इट वाज ऑल मी. So you are the first generation in First Ayurveda. generation, yes. So now tell us one thing, that in India Ayurveda is the pioneer in India, and India को ही माना जाता है कि आयुर्वेदा का जन्म यहाँ पे होता है. But in today's time there are a lot of like westernization. एंड जब तक वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता है, तब तक हम हमारे देश में रहते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. Absolutely. So for last 2-3 years, there are certain acceptability in Western countries on Ayurveda. Yeah. And then again we started regaining on Ayurveda in India. Yeah. How you look at this hypocrisy? I will not say it's hypocrisy in per se, but सी जैसे है दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग में बन के बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है और दार्जिलिंग के लोगों को कम चाय मिलती है. इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी हैव इन आवर कंट्री. सो दैट्स व्हाट हैपेंड टू आयुर्वेद एज वेल. वहाँ पे एक्सेप्टेंस क्रिएट किया गया पहले बिकॉज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज बेटर मे बी, बट for me, I think that Ayurveda was never a business. Ayurveda was never just a medical science, but it was a way of life. So yes, ये awareness जब लोगों में, मतलब हमारी जितनी कोशिश अभी चल रही है while practicing Ayurveda, through clinics, through lectures, through our product range that we have made, we feel that more than being just a medical science, it should be a way of life. So Ayurveda should be incorporated in your daily life, from waking up early in the morning at 4:30, Brahmi Muhurte Uttishthite जो बोला है, तब से लेके रात को सोने तक you should follow Ayurveda. That is how you can avoid falling ill, you can avoid infections, you can improve your immunity. And आपने कोविड में भी देखा होगा, यूरोपियन कंट्रीज में डेथ रेट जितना था उससे हमारे यहाँ पे वी कुड सर्वाइव बेटर, वी वर स्ट्रॉन्गर from within because of our culture, because of our lifestyle. So फॉरेन में उसका प्रोपोगंडा होने दो, कितना भी फैलने दो. आयुर्वेद यहाँ है, आयुर्वेद अंदर बसा हुआ है, आयुर्वेद हम जी रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रॉन्गर बेटर और
we are just living a better life than those people. So is it for you that Ayurveda is a preventive medicine or it should be considered as a curable medicine as well? It's both. It's a way of life. Okay. So हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम, ऐसे आयुर्वेद की व्याख्या है कि हितकर क्या है और अहितकर क्या है, सुखकर क्या है और दुखकर क्या है, ये जो साइंस बताता है वो आयुर्वेद है. तो अगर हितकर जो बोला गया है या जो सुखदायी चीजें जो बोली गई हैं वो अगर डे 1 से फॉलो की जाए तो इट्स अ प्रिवेंटिव साइंस. और एक बार आपको वो इन्फेक्शन हो चुका है या बीमार हो चुके हैं, तब जो क्योर के हिसाब से जो आता है, again it is a cure. Ayurveda is a cure, so it is both. It's a way of life. Now, as a layman, I just want to understand that what is the difference between Ayurveda and Unani? There's a huge difference. इनकी बर्थ प्लेसेस ही अलग हैं. इनके दोनों साइंस में, यूनानी का मुझे बहुत नॉलेज नहीं है. आई एम अ पर्सन हु कैन टॉक मोर अबाउट आयुर्वेद, बट प्रिंसिपल्स बहुत अलग है दोनों के. जैसे आयुर्वेद और हर्बल में भी बहुत फर्क है कि आजकल जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद बोल के जो बेचे जा रहे हैं, दैट इज नॉट आयुर्वेद, दैट इज हर्बल बट नॉट आयुर्वेद. एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मेड फ्रॉम प्लांट्स इज नॉट आयुर्वेदिक. Everything that comes from Ayurvedic texts, which is explained in the Granthas, which is mentioned in the Granthas, is Ayurvedic. Anything made from herbs is not Ayurved. Similar goes with Unani. Unani के अपने principles होंगे, अपने medicines होंगे, अपना thought process होगा. So there's a huge difference. I can't tell you the exact difference because I'm not a person who can talk about Unani. I was asking you this question because in Indian government recently they had organized one segment called Ayush. Yeah. और उस आयुष के अंडर में उन्होंने आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, ये जितने एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे कंट्री में अवेलेबल है उनको उन्होंने क्यूमुलेटिव किए एंड देन दे आर प्रोजेक्टिंग दिस एज ए होल टू द वर्ल्ड. We are also having this, Yeah. and we are having this much of market, and we are expecting this much market to be growing in next 5 years down the line. Correct. That was my point. Correct. No, but it's way different. इनकी बर्थ प्लेसेस अलग है. आयुर्वेद ये अपने ग्रंथों में मेंशन्ड है. वेद में अथर्ववेद का हिस्सा है आयुर्वेद. So ब्रह्मा स्मृत्वा युषोवेदम, कि ब्रह्मदेव को it had occurred, Ayurveda had occurred to him. So India is a birthplace of Ayurved. आयुर्वेद यहाँ से हुआ है. True. मिला है. बाकी साइंस जैसे होम्योपैथी आप बोलो, यूनानी बोलो, ये इंडियन नहीं है. यूनानी का अगेन आई रिपीट, मुझे नॉलेज नहीं है एग्जैक्ट कहाँ से है क्या है, बट होम्योपैथी इज फ्रॉम जर्मनी, इट इज नॉट फ्रॉम इंडिया. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर नॉर्मल लाइफ, व्हाट विल यू से? मैंने अभी जैसे कहा वैसे, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम. अपने जीवन के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, सुखकर क्या है और दुखदायी क्या है, ये बताने वाला साइंस आयुर्वेद है. आयुर्वेद की ये व्याख्या है. Okay. Now, if I talk about the clinical aspect of Ayurveda, the acceptability is very less. Because आज की तारीख में लोगों में शायद पेशेंस नहीं है या लोग इमीडिएट एक्शन चाहते हैं. So major there is a race for the allopathy medicine first. जी. जबकि हम जानते हैं आयुर्वेदा की क्या बेनिफिट्स हैं और लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स हमें दे सकते हैं. सो ये जो डिफरेंशिएशन है आयुर्वेदा एंड एलोपैथी में, क्या आज की तारीख में आपको दिखता है कि इसकी जो रुझान है ये पहले से बेहतर है और आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, बट और बहुत एजुकेशन का ज़रूरत है लोगों में आयुर्वेद को लेके. सी, life has become very fast. Nobody has the time to sit, relax, think, modify their lifestyle, क्योंकि एक रेस में आदमी अटक चुका है. इसमें you don't have, so जो अपना बेसिक है, like eating food in a better way, how to drink water, एक कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, that has become luxury now. Yes. And Ayurveda has become a luxury now because of that. Yes. So, it is just going back to your basics, understanding and living life in a healthier way. It is as simple as that. But we don't have the time to give a thought. It is popping a pill and moving on is much easier. So, I am very sure if थोड़ा सा और कोशिश की जाए और ये लोगों के लिए और अवेलेबल किया जाए इन अ सिंपलर फॉर्म, आयुर्वेद को अगर और सिंप्लीफाई करके अगर इजीली अवेलेबल कर दिया जाए लोगों के लिए, तो आई एम 100% श्योर इसका एक्सेप्टेंस भी लोगों में बढ़ेगा. मेजर प्रॉब्लम जो आज की तारीख में, इफ आई टॉक अबाउट 2024, अगर हम देखें तो जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, वो सारे लग्जरी सेगमेंट को कैटर करता है.
और जो ट्रीटमेंट्स भी हैं या जो भी तरीके का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत सारा फैशनेबल हो चुका है एंड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जब वही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। और जो बेसिक आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते थे पहले ज़माने से वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। तो एक तो वो पुराने ढांचा जो बना हुआ था और एक नया फैशनेबल सो कॉल्ड बहुत अच्छे से पैकेज किया करके जिसको परोसा जा रहा है, इसके बीच का जो गैप है हमारे मिडिल क्लास तो वहीं पे है। सो एक चला गया एकदम अपर क्लास में, एक चला गया एकदम लोअर क्लास में। जो बीच का है, जो मैक्सिमम 130 करोड़ पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम पोर्शन है, ये दोनों के रीच से बाहर है। इसको कैसे एड्रेस करेंगे? ये हर फील्ड में है, ये हर फील्ड में आपको दिखेगा। इट इज़ नॉट ओनली आयुर्वेद कि एक गैप दिखती है व्हेन वी आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर सेगमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल प्रैक्टिसिंग एंड केटरिंग टू एवरी सेगमेंट ऑफ ऑफ पीपल एंड क्लास। हर क्लास को केटर करने के लिए एक अलग ब्रांड है। बस अभी आपको जो लग्जरी ब्रांड्स दिख रहे हैं बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट मोर इन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया हैज प्लेड अ मेजर रोल इन दिस। या सो आई फील जेन्युइनली कि ये आपके मेरे सरीके लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है टू टेक इट टू द मासेस, कि हाउ टू मेक इट अवेलेबल टू द मासेस एंड सो इट मेरी तो कोशिश हमेशा यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का या ये फ़ायदा कैसा उठाया जाए टू एडुकेट पीपल एंड टू मेक इट अवेलेबल टू मोर एंड मोर पीपल, टू मेक इट more accessible. Ayurveda has to be more accessible, and it is. There are practitioners who are catering to every segment of people and class. There are. But the problem is that कि whatever the medicines and whatever the remedies you people prescribe or you people have suggesting to the people, that is not available so called in normal way. हमको तो 1 किलोमीटर में जाएंगे तो कम से कम 50 हमको मेडिकल शॉप दिख जाएगा जहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो नहीं है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? See, it is not a problem of Ayurveda. I'm repeating this because Ayurveda एक अथांग सागर सरीका है. It is मुझे बहुत बार ऐसे आके पूछा जाता है क्या इसका इलाज आयुर्वेद में है? आयुर्वेद में है। अगर मैं उस चीज का इलाज नहीं कर पा रही हूँ तो ये मेरी कमी है। अगर मैं किसी एक पेशेंट को फायदा नहीं दे पा रही हूँ तो आयुर्वेद वहां फेल नहीं हो रहा है। मी एज अ प्रैक्टिशनर आई एम फेलिंग। सिमिलर अप्लाइज इन एवरी पार्ट कि आप कहिए स्टैंडर्डाइजेशन में या दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है जो आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन पे काम नहीं कर पा रहे हैं या बट थिंग्स आर चेंजिंग. Today when we are making products or we are launching new products or we have to retail our products, Ayush has done a great job and there are rules that we have to follow. There are certain nutritional values that have to be mentioned behind every product. And yes, things are changing and बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है and I think it is a question of next few years. If you and me are able to educate people, ये स्टैंडर्डाइजेशन और अवेलेबिलिटी ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली है. इट इज गोइंग टू बी अ ब्राइटर एंड बेटर पिक्चर. नॉर्मल चीज़ों में जब हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में तब बहुत सारे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आयुर्वेदा. जी. एंड स्पेसिफिकली एक डिटॉक्स करके एक टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत चलन में है. या आप कुछ भी करेंगे पूरे साल भर या 6 महीना, उसके बाद आप डिटॉक्सिकेशन के लिए आयुर्वेदा के भरोसे में जाएंगे 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए. सो जब बचना है तब आयुर्वेदा, बाकी जो आपको उधम करना है तब आप कुछ भी करें. सो व्हाट इज दिस? मार्केटिंग. और ये डिटॉक्सिकेशन का क्या कोई इंपॉर्टेंस है कि आप 6 महीने बाद एक बार डिटॉक्स करें, 15 दिन के दिन आप शुद्ध हो जाते हैं? डिटॉक्स आयुर्वेद में बहुत बड़ा एक पार्ट है. सो आयुर्वेद चिकित्सा जब कहते हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स एक्चुअली. फर्स्ट पार्ट इज रसायन जिसमें टॉनिक्स आते हैं सारे, और जो क्यूरेटिव पार्ट उसका जो है क्योर करने का, उसमें शोधन और शमन चिकित्सा आती है. शोधन इज डिटॉक्सिफिकेशन कि आपके दोष जो इम्बैलेंस हुआ है उसमें से पहले शोधन करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकलना, और शमन यानी आपके वात पित्त कफ ये 3 दोष जो है उनको बैलेंस करना. सो यस, डिटॉक्सिफिकेशन को शोधन ये टर्म है आयुर्वेद में, एंड यस इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट, आपने जो भी टॉक्सिक चीजों को बाहर निकाल दिया डिटॉक्स के थ्रू, जी, एंड देन हाउ टू मेंटेन द सेम हेल्थ फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम थ्रू आयुर्वेदा. व्हाट इज योर सजेशन इन दिस? रसायन चिकित्सा.
रसायन जो कहे गए हैं आयुर्वेद में, उसके थ्रू देन इट इज मेंटेन्ड, योर स्टेट ऑफ हेल्थ इज मेंटेन्ड विद रसायनास, टॉनिक्स, जो आजकल आपको बहुत दिखने में, च्यवनप्राश इज अ टॉनिक, अश्वगंधा, शतावरी, ये सारे टॉनिक्स है. सो वंस अ शोधन या डिटॉक्स इज डन, देन यू मेंटेन द दोषास इन बैलेंस. नाउ इन लेमन्स लैंग्वेज आई वांट टू आस्क यू कि हमारे जो खान पान है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, वो बहुत टॉक्सिक ऑलरेडी है जी. क्योंकि बाजार में जो चीज़ें मिलती हैं वो किस लेवल का है, वो तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, उसके लिए डिटेल में बात नहीं कर सकते. सो ये सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस में, उसके साथ आयुर्वेदिक के कोई भी चीज कंज्यूम करने से क्या हम उसको बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. एंड जो डिटॉक्स आपने मेंशन किया, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट वंस इन 3 months या वंस अ ईयर डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसके बाद मेंटेन करने के लिए, एज आई सेड, देयर आर हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, शतावरी दैट कैन बी टेकन इन डेली लाइफ टू. सो आयुर्वेद विटामिन्स, प्रोटीन्स ये नहीं मानता. देयर आर 7 बॉडी एलिमेंट्स, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र. ये सातों बॉडी एलिमेंट्स जो आपके हैं उनको नरिश करना और एक आपके 3 दोष जो है, वात, पित्त, कफ, उन तीनों को बैलेंस करके रखने के लिए देयर आर सर्टेन हर्ब्स व्हिच आर मेंशन्ड इन आयुर्वेद. इफ टेकन डेली, yes, it is a tonic that you can take. If I will ask you, name 3 things that everyone should take every single day to maintain their life in a better way, what should be those 3 things that Ayurveda is providing to every single individual and they can take it easily? Ashwagandha. Okay, and what form? अश्वगंधा कैन बी टेकन, उसका च्यवनप्राश का पाक भी बन के आता है, यू कैन टेक दैट. और अश्वगंधा टैबलेट्स अवेलेबल हैं, अगर आप टैबलेट्स नहीं करने. इट्स अ टॉनिक, एज आई सेड, इट्स अ रसायन. इट मेंटेन्स योर, इट एंटीऑक्सीडेंट्स है इनमें. तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो एक डिजनरेटिव प्रोसेस जो अपनी बॉडी में होता है, उसको बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा हेल्प्स अ लॉट. फीमेल्स में शतावरी अगेन इज इट इज अ फाइटोएस्ट्रोजन, राइट? इट इज द ओनली हर्ब विच गिव्स यू एस्ट्रोजन्स. सो फीमेल्स में शतावरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that can be taken. Guduchi is a very good herb which can be taken again. तो ये सारे रसायन हैं, सारे antioxidants हैं. You can take them for a healthier life. And is there any standardization of the quantity that everyone should take on a daily basis? It's mentioned. अगर आप tablets ले रहे हैं तो it is mentioned on the bottle कि कितने tablets आपको लेने हैं, 1 या 2 and tablets. is it dependable on your body weight or any body condition? Not necessarily. क्योंकि once you're usually ये tonics हम लोग कब लेते हैं, जब हमको realize होता है कि अभी बचपन से नहीं लेते हम. So 30 plus usually वो dose is लगभग similar रहता है सब में. Okay, that means if there is not having such kind of standardization, that means इसका कोई side effect type का कोई चीज नहीं है. Okay, so is there any products available market में जो so called इन सारी चीजों को normal routine life जीने के लिए मदद करता है? जी, हमारे ही हैं. My brand is Pand and we are making many products right from teas to candles and everything that can make Ayurveda part of your lifestyle. So yes, we have Shatavari Kalpa करके आता है. We have Urja bars which are energy bars which are sugar free. It can be a snack or it can be it can be a proper meal also. एक 3 बजे का, 4 बजे का अगर आपको. So there are many products that are available in the market that can help you lead a healthier life. I'll come in detail about Spun. Yeah. Before that, I want to ask another one thing that in today's time in 2024 जब हम market capitalization देखते हैं या market को जब हम देखते हैं तब हम market size के साथ किसी भी industry को जांचते हैं. तो number one that today it is having 90,000 crore company as Ayurveda. And we are expecting to have 1,20,000 crore company in Ayurveda. That means there is an exponential growth जो expect किया जा रहा है. There are 5-6 players majorly who play this major role. क्या आयुर्वेदा का जो उत्पाद है वो इतना हो सकता है पॉसिबली नेचुरली कि हम इतनी चीज और इतना मार्केट को ग्रो करने में हेल्प कर सके इंडिया में? प्योर काम अगर करना है और एक्चुअल हर्ब्स जो ग्रंथों में मेंशन्ड है वही सब हर्ब्स लेके अगर करना है तो येस इट इज़ डिफिकल्ट टू मीट दैट डिमांड. बिकॉज एनी टाइम एंड एवरी टाइम व्हेन यू से कि जो ग्रंथ में जो हर्ब्स मेंशन्ड है, जो प्रपोर्शंस मेंशन्ड है, जो क्योंकि इट इज़ वेरी
द श्लोकास और द ग्रंथास आर वेरी पर्टिकुलर कि आपको कोई भी हर्ब यूज करनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा कि उसको कैसे यूज करना है, वो कैसी होनी चाहिए, उसके रूट्स कैसे होने चाहिए, उसके लीव्स कैसे होने चाहिए, फिर उसको क्या प्रमाण में यूज करना है. देयर इज एन एंटायर प्रोसेस दैट हैज टू बी फॉलोड कि उसको प्रोसेसिंग जो होता है उसका पूरा टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट. Yes. अगर ये सारी चीजें आपको करनी है तो बल्क प्रोडक्शन, there are very few companies who are doing a good job actually इस पूरे इसमें. I won't be taking names, don't ask me names. Yeah. मुझे एक्चुअली सवाल यही है कि इतना बड़ा मार्केट जो हम बनाने की बात करते हैं वो वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है कि अगेन देयर विल बी समथिंग व्हिच विल बी नॉट एज पर द स्टैंडर्डाइजेशन. बिल्कुल. क्या स्पंद का जो इंसेप्शन है वो इसी वजह से है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्हाई यू फेल्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग स्पंद. सी ड्यूरिंग कोविड जो फर्स्ट वेव आया उसमें काढ़ा बहुत फेमस हो गया था. एवरीबडी वॉज टेकिंग काढ़ा एंड वी यूज टू गेट कॉल्स. आई वॉज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देन, शटर डाउन थे सबके. एंड वी यूज टू गेट कॉल्स आस्किंग कि ये प्रपोर्शन सही है क्या, मैं सौंठ की जगह अदरक यूज कर सकती हूँ क्या, मतलब सारे गरम मसाले की सारी रेसिपी वहाँ पे थी. एंड यू नो समवेयर आई वॉज फीलिंग वेरी एजिटेटेड लुकिंग एट ऑल दैट. So that is how Spun started. We launched our first kadha with the name Amrutam, in which we जिस proportion में वो सारे herbs combine किए गए थे was very important, and we kept changing the proportion according to season and according to अभी क्या है कि अभी ये वेव जा चुकी है, अब क्या उसका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से वी यूज टू कीप ऑन चेंजिंग द प्रपोर्शन. विद दैट देन वी थॉट कि ये हम लोग इंटरनली अमृतम ले रहे हैं तो एक्सटर्नली क्या करें, तो वी मेड धूप कि यू नो कि एंटी माइक्रोबियल. सो सुश्रुत संहिता में जो लेबर रूम्स और सर्जिकल थिएटर सैनिटाइज करने के लिए जो हर्ब्स मेंशन थे, वी प्रोक्योर्ड दोज हर्ब्स और काउडंग में और सब ये करके वो धूप वी रोल्ड आउट इनटू धूप. तो वो धूप बना. ऐसे करके एक एक प्रोडक्ट बनते गए, हम बनाते गए और केटर करते गए. सो स्पंद हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली. इट वाज नॉट दैट कि हमको आयुर्वेदिक कंपनी स्टार्ट करनी है बिकॉज आयुर्वेद को बहुत डिमांड है. इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज आई एम अ हार्ड कोर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर. एंड जैसे आपने अभी इन्फ्लुएंसर की बात करी जो आजकल बहुत चल रहे हैं, आई थिंक दैट ईच आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर शुड स्टार्ट एक्टिंग एज एन इन्फ्लुएंसर देमसेल्फ बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ, other people's lives, and there are people who come in your contact. So you are constantly setting an example for those Ayurvedic practitioners who are in the making now. So yes, you have to be very true, and if you have to जो अभी जो डिमांड बढ़ती जा रही है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रीड, इम्प्रोवाइज एंड कीप ऑन चेंजिंग योर फॉर्मुलेशंस एंड यू नो. एंड जैसी डिमांड है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स बनाते रहने पड़ेंगे आपको, अगर आप यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. जैसे च्यवनप्राश, वी आर वेरी श्योर कि वी कैन मतलब आई कैन से दिस विद गारंटी क्योंकि हमने देखे हुए हैं च्यवनप्राश जिसमें आंवला छोड़ के कद्दू यूज हो रहा है या आलू यूज हो रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज द बल्क एंड टू इंक्रीज द वेट. बिकॉज एक्चुअली च्यवनप्राश जब आप बनाने जाते हो तब आंवले के बहुत रेशे निकलते हैं एंड आप 10 किलो आंवला लो तो भी 5 किलो आपके हाथ में पल्प निकलता है. सो इट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, इट इज अ वेरी पेन्स टेकिंग प्रोसेस इफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द ग्रंथास. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि दैट इज हाउ स्पन हैपेंड. स्पन हैपेंड बिकॉज आई फील कि पीपल डिजर्व टू हैव Ayurveda in the purest form and in the actual form. So that is how Spand is growing, and we are catering to the demand of the people. Yeah. So how many products you are having in Spand? 20 plus now, right now. 20 plus. Yes. And what is the process to reach to people? Word of mouth, social media. Okay. And I'm taking many lectures and workshops jahan pe we are trying to educate people about what Spand is and what Ayurveda is. And Spand products are available in what format? कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे लोग परचेज कर सकते हैं? So Spand is अभी तो we are doing sales through our website. Clinic से ये from this clinic we are dispensing Spand products, and we are coming up with an experience center in the month of August. तो वहाँ से we are targeting sales from there. Yeah. So ये जो manufacturing process है ये totally headed by you? Completely. Everything is handcrafted. Everything happens in the clinic in my workshop, and it is headed by me. Okay. And what is your expectation in terms of volume? Volume
not very big. That is why you won't find us on Amazon, Flipkart. We are not present anywhere because everything is customized, handcrafted, and pure. So, And is it reachable to people in terms of finance? it is. So we are into corporate gifting also, and Okay. उसका पर्पस भी यही था कि आप एक जने को आपका प्रोडक्ट बेचो या और उसको कन्विंस करो अबाउट आयुर्वेद एंड हाउ आयुर्वेद इज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट में जाके एक HR कंसल्टेंट को कन्विंस करो एंड यू आर इन 200 होम्स. सो वी गॉट इनटू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग फॉर दैट. सो येस, वी हैव आवर चैनल सेट कि हाउ आर वी गोइंग टू रीच आउट टू पीपल. या What you find difference between the city like Mumbai, Pune and Indore? Because Mumbai is a completely different dynamics. Pune is having a separate kind of a dynamics. And when you came to Indore, that time it was just a growing city kind. Where there was a lot of L11 differences in today's time and at that particular point of time when you came to the city. So acceptability in terms of openness, acceptability in terms of different things to try, and acceptability in terms of spending money. How you find the difference between Mumbai, Pune and Indore? There is a difference because पुणे और मुंबई में आयुर्वेद का अवेयरनेस ज़्यादा था. So लोग अपने आप आपके पास आ जाते थे. Once you put up a board that you are practicing Ayurved, there used to be people who used to come to you for taking Ayurvedic medication. इंदौर में उतना acceptance, उतना awareness था नहीं. So I took one day at a time and one patient at a time, and I think we did a good job. कि धीरे धीरे एक को convince करते हुए we did good. So what is your thought process regarding running a clinic of Ayurveda and at the same time have a product line which is catering a mass? इसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? It is easy because दोनों जगह पे मुझे काम एक ही करना है, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं, एंड द कॉन्स्टेंट एफर्ट इज जस्ट मेकिंग आयुर्वेद अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफस्टाइल, वेदर इट्स इन क्लिनिक और वेदर इट्स थ्रू द प्रोडक्ट्स एंड केटरिंग टू द मासेस. एनीवेयर एवरीवेयर थॉट इज एग्जैक्टली द सेम, दैट आयुर्वेद शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. एंड येस, जो अभी आयुर्वेद, मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप आयुर्वेद एज स्टडीज एज वेल, एंड बेटर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स शुड, यू नो, क्योंकि आयुर्वेद करके usually people start practicing allopathy. Yes. You are allowed to. So if you create a strong base for them, then there will be more acceptance and there will be better Ayurvedic practitioners in the future. So again, I want to ask some basic question. How many seats are there for Ayurvedic medicine study? I'm not sure now. And what is the exam pattern? It is same or different? Common entrance test होती है, जिसके बाद आप according to your score you get admission in MBBS या आयुर्वेद में या होम्योपैथी या डेंटल साइंस, जहाँ भी आपको. And the same is 5 years? 4.5 and 1 year of internship. Okay. So आपने यहीं पे अपना प्रैक्टिस शुरू किया था कि आपने पुणे में भी कभी प्रैक्टिस किया है? पुणे में मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने मुंबई में 1 साल भर प्रैक्टिस किया था एंड देन इंदौर डायरेक्टली. ओके. अभी जब आप कोई सेमिनार लेते हैं या जब कॉमन लोगों से जब आप मिलते हैं, what kind of questions you get on Ayurveda? Because there are a lot of vague questions and a lot of vague ideas regarding Ayurveda. So what kind of things you get from the people whom you want to connect? सबसे I'll tell you a few questions जो आते हैं. People want to know a lot about diet. Yes. कि आयुर्वेद में डाइट के बारे में क्या लिखा है. They want to know, they want to eat better, they want to stay healthier. So these are a few of the positive things that happen. But some things that happen in seminars are you know, आयुर्वेद में वेट लॉस के लिए कुछ है क्या? एक्सरसाइज किए बगैर पतले हो जाएंगे क्या? एक्ने है, आयुर्वेद के 10 दिन के ट्रीटमेंट में मेरा एक्ने छू हो जाएगा क्या? सो ऐसे सवाल भी आते हैं. सो everything is accepted. You have to just answer, keep on answering. आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का जो बेस माना जाता है दैट इज हिमाचल प्रदेश एज अ स्टेट. जी. और उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला है आफ्टर दिस पतंजलि एंड बाबा रामदेव. जी. बाबा रामदेव जी का उत्पत्ति इसी बात पे हुआ था कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और आयुर्वेद को ट्रीट करते हैं या आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट टुडे द पतंजलि प्रोडक्ट लाइन, देयर इज नथिंग, देयर इज नो मैच बिटवीन आयुर्वेद एंड द प्रोडक्ट व्हाट वी आर गेटिंग इन द मार्केट. सो ये जो एक डिफरेंस है जो आप बताते हैं या जो आपका बेस है, और जब आप उसको कमर्शियलाइज करते हैं तब आपका जो चेंज ऑफ पैटर्न है, ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज आज की तारीख में देयर आर मल्टीपल क्लिनिक्स व्हिच हैज बीन सेट अप जहाँ पे ये बताया जाता है कि आयुर्वेदा IVF सेंटर, जी, इनफर्टिलिटी सेंटर आयुर्वेदा का, जी,
क्या ये वाकई पॉसिबल है, या इसको कमर्शियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है इस सारे टेक्निक को, सो दैट वी कैन गेट मल्टीपल पीपल टू गेट अट्रैक्टेड ऑन अस? There are two words which are very commonly used nowadays. ये जो फ्रेंचाइजी पैटर्न में आजकल आयुर्वेद चल रहा है कि यू नो पीपल आर सेटिंग अप मल्टीपल क्लिनिक्स, उसमें दो चीज़ें हैं जो, और प्रोडक्ट्स का भी जैसे आपने बोला, फेयर प्ले एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये दो नाम के नीचे आजकल सब चल रहा है. सो कितनी फेयर प्रैक्टिस हो रही है, आई एम नॉट श्योर. इच्छित गर्भ प्राप्ति इज सेगमेंट इन आयुर्वेद, लेकिन एक्चुअली उस क्लिनिक में आईवीएफ के नाम के नीचे क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया. आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट येस इच्छित गर्भ प्राप्ति है आयुर्वेद में. सो एक्चुअली अगर वैसे पढ़ के अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा उस इससे, तो इट इज पॉसिबल. ओके, नाउ माय पॉइंट इज दैट कि आज की तारीख में 2023 लेटली एंड 2024 आज की तारीख में सोशल मीडिया में या इन्फ्लुएंसर के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आपको फूड का लेवल पढ़ना है. तो हिंदुस्तान आज जाके लेवल पढ़ना सीख रहा है जी, कि आप जो खा रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें क्या है. जी. आयुर्वेद में ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन है कि जो लेवल में आपको नोट करना पड़ता है, या देयर इज समथिंग दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आयुर्वेद में भी दिस इज शुद्ध थिंग एंड आयुर्वेद में देयर इज सम मिलावट और देयर इज सम एडेड शुगर और समथिंग? नहीं, अभी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के पीछे भी मेंशन रहते हैं, विच यू कैन रीड एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या परसेंटेज है, कैसा है, क्या है. बट हु विल मेक दैट अंडरस्टैंडिंग क्लियर कि इज इट राइट प्रोडक्ट और इट इज समथिंग व्हिच हैज बीन कमर्शियली प्रोक्योर्ड? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन कि जब अगर कोई कमर्शियल प्रोडक्ट जब हम मार्केट में जो वाइडली मॉल्स में दिखता है, या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो हमको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दिखते हैं जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पे बिकता है, जी, उसके जो प्रोडक्ट लाइन है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है और जो एक्चुअल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो ये डिफरेंशिएशन को कैसे आप एड्रेस करते हैं कि लोगों को ये समझ आए कि ये डिफरेंशिएशन क्या है, उनके लिए क्या बेटर है? आई थिंक देर आर मेनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस. आप अगर देखेंगे इंस्टाग्राम या इन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देखेंगे तो ढेरों हैं जो रील्स रिकॉर्ड हो रहे हैं टू टेल पीपल, टू मेक देम अवेयर कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड. बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट जो आजकल लॉन्च हो रहा है इट कांट बी, देयर आर प्रॉपर लैब टेस्टिंग हो रहा है, लैब्स में टेस्ट होके न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके पीछे छपा हुआ है. अभी उसके आगे और क्या करोगे, ऐसा वाला है. तो इतना सब करके भी इफ समवन इज नॉट डूइंग अ फेयर प्ले, देन आई डोंट नो कि भगवान मालिक. You know basic Ayurveda. Yeah. You understand Ayurveda. Yeah. As per your understanding and as per your standard, what is healthy living? What is healthy living? Healthy living is 8 hours of sleep. Healthy living is having 2 proper meals a day. Healthy meals is by healthy meal I mean कि षड रसात्मक दशगुणात्मक जो आयुर्वेद में खाना जैसे बोला है, all 6 tastes to be incorporated in your food and खाना पचने के मतलब 3 घंटे जो लेता है तब तक बीच में कुछ स्नैक्स नहीं आने चाहिए. You should be exercising at least 20 minutes a day. So ये 3 अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, 4 चीज़ें एक्चुअली, तो आई थिंक यू आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. 1 is good sleep, 1 is good meals, exercise and रसायन जो आयुर्वेद में बोले गए वो रेगुलरली कंज्यूम करना. तो ये 4 चीज़ों से आई थिंक यू आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. ना थोड़ा सा मैं नॉर्मल चीज़ आपसे जानना चाहूँगा. आज की तारीख में जिस टाइप की कंपटीशन है, ये शुरू हो जाता है क्लास 5-6 के बच्चे से. जी. एजुकेशन में एक भागदौड़ है, उसके बाद कैरियर में भागदौड़ है, लाइफ में तो है ही है. जी. तो ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इस स्ट्रेसफुल लाइफ से अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके, कभी कभी लोग बोलते हैं कि घूमने चले जाओ तो स्ट्रेस कम हो जाता है, कभी कभी कोई बोलते हैं कि गाना सुनो स्ट्रेस कम हो जाता है. नॉर्मल हेल्थी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ये स्ट्रेस को बैलेंस आउट करने के लिए व्हाट इज द राइट प्रोसेस टू लीव? गोइंग आउटडोर्स. आजकल बच्चे जो, अगर आप स्ट्रेस का बोल रहे हैं, 5 साल की उम्र से जो बच्चों पे स्ट्रेस आ रहा है, या आपके वर्किंग हैबिट में जो आपको जो स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, यू आर इन द ऑफिस फ्रॉम 9 to 9, बच्चे रूम में बंद है, इधर स्कूल में या घर पे पढ़ाई कर रहे हैं. आई थिंक टू
to lead a healthier life, you should be outdoors more. कि कम से कम एक आधे से 1 घंटा इन द फॉर्म ऑफ नाइट, रात में पोस्ट डिनर वॉक पे जाना या मॉर्निंग वॉक्स पे जाना या बाहर बैठ के मेडिटेशन करना या अनुलोम विलोम करना, वॉट एवर सूट्स, बट एटलीस्ट 1 hour outdoors बिताना in fresh air and getting a lot of oxygen is what is needed as a stress buster, I think. Okay. What is the importance of spirituality in everybody's life? Because it has been addressed in a different way. जी. Or after a certain age only people understand that what is actually spiritualism is. So what is your understanding on this, and how much spiritualism is important to maintain a normal life? Again, a very relative thing. For me, spiritualism is very important. It keeps me grounded, it keeps me focused, and it keeps me relaxed. So yes, it is very important for me because I get a focus because of that. But again, very relative. There are people who are handling their lives perfectly fine without being spiritual. So yeah. अभी मैं अगर वापस इस पंथ के बारे में आपसे जानना चाहूँ, so what is your futuristic plan with Spand? Because Spand is in a local level as of now. जी. So अभी अगर इस पंथ को अगर आप scalable सोचें या scalable करना चाहते हैं, जी. तो what are the first 1, 2, 3 parameters that you are looking for? What should be the actual acceptability for a large number of audience first, and then maybe there will be a larger aspect of accepting other products as well. So what will be your first 3 parameters to make Spand scalable and accessible to maximum number of population? स्पंद सिर्फ इंदौर में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. वी हैव बीन राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट ईयर वी हैव बीन सेंडिंग कुरियर या इससे स्पंद इज गोइंग ऑल ओवर इंडिया. मुंबई, अहमदाबाद हमारा बहुत सामान जाता है. बैंगलोर, वी हैव अ मार्केट इन बैंगलोर. एक्सपोर्ट भी काफ़ी हो चुका है. सो येस, स्पंद इज ग्रोइंग, बट क्वालिटी कंट्रोल इज आर मेन. ये कि just for catering masses, we'll never ever compromise on quality, and that is the first parameter that we will always keep in mind कि while scaling up, कि जब भी बढ़ेंगे quality control हमेशा दिमाग में रखते हुए बढ़ेंगे. You are basically a medico. You entered into an entrepreneurship. Yeah. How is this shift? Learning. And in today's time, if I talk about that entrepreneurial journey, there are a lot of new guys, they are coming with the ideas and product line and something on a different way. अगर आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, then what should be the first 1, 2, 3 parameters that everyone should consider these as first, and then only think to enter as an entrepreneurial journey? People are smart, and and people are reading, people are getting educated, they have got exposure to read up anything and everything now. So I think it's time, even entrepreneurs are also smart, but it's time that they have to be smarter, because जिनको आप केटर कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. So that if you don't keep quality in mind, and if अगर आप किसी का बुद्धू बना रहे हैं तो ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, is what I'm trying to say here. So you always have to have be your honest with your product line. Yes, absolutely, because लोग बुद्धू नहीं हैं. So this should be the number 1. Second, what will be your suggestion for them? I think I'm no guru in this, so I won't be able to ये ऐसे 1, 2, 3, 4 parameters, because see, I'm an Ayurvedic practitioner. Ayurvedic physician, been practicing for 18 years. So Ayurveda is something that comes to me very naturally. If I ask you in a different way, that जब आपने स्पंद शुरू किए थे, जी, तब what was your 1, 2, 3 कि मुझे ये 3 चीजें maintain करना है, and that I want to maintain for lifelong for Spand? I told you, quality. Quality was always number 1. That is number 1. I always have to maintain the obviously. quality. That was the basic ये. And दूसरा, I realized कि challenges accept करना और उसको complete करना, इससे मुझे बहुत किक मिलती है, is what I realized. कि भले ही इट इज़ हैंडक्राफ्टेड, लेकिन अगर बड़ी ऑर्डर्स आती है, बड़ा ये आता है, तो भी क्वालिटी को कंट्रोल करके, अच्छा रख के, कम टाइम में उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे. सो देयर इज लॉट ऑफ प्लानिंग दैट इज नीडेड. सो आफ्टर क्वालिटी, सेकंड पॉइंट अगर आप पैरामीटर पूछेंगे मुझे, तो देयर इज लॉट ऑफ प्लानिंग दैट गोज बिहाइंड इट, कि एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड वेल, योर डे हैज़ टू बी प्लान्ड वेल.
मैं अगर स्पंद के प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात करूं जी। तो देयर इज अ प्रोडक्ट गुलकंद जो आप लोग जी। बनाते हैं एंड इट्स एन हाईली सेलेबल प्रोडक्ट्स। जी। गुलकंद के बारे में जब भी हम नाम सुनते हैं हमको पान याद आता है कि पान में लगाया जाता है, पान में Yeah. दिया जाता है एंड टुडेज टाइम पान का कंजम्पशन हिंदुस्तान में बहुत है जी। और हर पान में शायद गुलकंद लगाया जाता है। जी। And those gulkand what has been used on that pan shop, Yeah. that is completely with chemicals and colors and all. So what is the actual gulkand and what is the benefit and health benefits of gulkand? गुल इज रोज एंड कंद इज मिश्री जो मिलती है वो, सो उसके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो गुलकंद है। इट इज एज सिंपल। अभी मार्केट में शुगर फ्री गुलकंद मिल रहा है विच इज नॉट पॉसिबल इज व्हाट आई फील। जैगरी वाला, खजूर वाले, अलग अलग गुलकंद बन रहे हैं। तो बेसिकली आप जो मेडिसिनल वैल्यू है उसकी वो खत्म कर रहे हो। वो शरीर को ठंडा रखने के लिए गुलकंद बनाया जाता है बिकॉज इट इज पित्त पैसिफायर। आपके बॉडी में जो पित्त दोष है वो अगर बढ़ा हुआ है तो उसको पैसिफाई करने के लिए गुलकंद, इट इज एज सिंपल एज दैट, इसलिए गुलकंद दिया जाता है। सो इफ यू आर चेंजिंग द फॉर्मूला, इफ यू आर चेंजिंग द इंग्रेडिएंट्स, देन इट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन द सेम वे एज इट इज एक्सपेक्टेड। What is a true Chyawanprash and what are the basic ingredients of a right Chyawanprash? च्यवनप्राश इज च्यवन ऋषि ने बनाया हुआ एक फॉर्मूला है च्यवनप्राश एंड इट्स मेन इंग्रेडिएंट इज आंवला, मिश्री अगेन, एंड देर आर ऑलमोस्ट 30 हर्ब्स जिसका डिकॉक्शन बनता है। फिर आंवला उसमें उबाल के, देर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इन। सो यू नो दिस इज एंटायर डे का प्रोसेस जिसमें we make Chyawanprash. So it is a very lengthy process. It is not something that it happens just in few hours. What is the health benefit of it? Because Chyawanprash is always getting marketed Yeah. at the time of cold. जी। जब हमारे विंटर सीजन आते हैं तब च्यवनप्राश को प्रमोट किया जाता है। तभी हम भी च्यवनप्राश तभी बनाते हैं कि जब फ्रेश आंवले बाजार में आते हैं, एंड द सीजन इज फ्रॉम नवंबर टू मार्च। Okay. Yeah. And now if I talk about Spand, what are your 1, 2, 3 highly sellable products presently? Everything. You are selling everything on the same. Everything, yes. Any specific product that you want to develop as per the requirement in present term? सी मोस्टली जैसे रिक्वायरमेंट आई, लोगों में जैसे दिखी वैसे सारे प्रोडक्ट्स बनते गए। कल को जाके कुछ और दिखता है तो और बन जाएगा। Now again I'm going back to your Yeah. childhood time. Yeah. That आप जहाँ से आए थे वहाँ पर आयुर्वेदा का कोई बेस नहीं था. Even no one was there in your family in Ayurveda. Yeah. So you entered into it. What was the acceptability of it? I was allowed to do anything and everything that I want to do. Yeah, my parents were always very supportive. They are still supportive. They are happier that I'm an entrepreneur now because I get it from my father. He is into cosmetic industry and yeah, so they are happy if I'm practicing Ayurveda. They're happy that I'm an entrepreneur. I'm making Ayurvedic products now. So they're very supportive. Anything and everything I do is supported. Yeah. How you see today's market? What is in cosmetic? If I talk about Ayurvedic products, and if I talk about nutritional supplements, how much nutritional supplements are essential in today's time to consume on a day-to-day basis? Because it has been promoted like hell. Yeah. Because at the same time you are saying that we need to have a healthy life and healthy eating, Yeah. and at the same time we are promoting nutritional supplements जी. or anything which is coming as a supplement to your diet that will create certain disbalance in your body as well. So what is the actual value and proportion to be for the nutritional supplements on a day-to-day basis and regular basis? See, I feel that if your metabolism is good, जिसको आयुर्वेद में जाठर अग्नि कहा जाता है, your digestive fire, then whatever you eat should nourish your body, and your body should absorb nutrients from what you are eating. But if your metabolism is sluggish, your digestive fire is sluggish, you are not able to digest the food that you are eating properly, तो आप फिर कितने भी supplements उसको दो तो बॉडी वो भी digest नहीं कर पाएगी. It is just a waste. You are building up toxins in your body. So yes, firstly you need to work on your metabolism, you need to work on your jatragni. If your digestion is perfect, then जो daily खाने, then your food, second part आता है कि आप क्या खा पी रहे हैं फिर. If you're eating a balanced diet, then खाने में से सारे vitamins, proteins,
कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आपको चाहिए वो मिलते रहेंगे। अगर आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो कि आपके खाने में से आपको नहीं मिल पा रहा है, देन सप्लीमेंट्स are used and they again depend on your age, your working pattern and everything. उसके ऊपर उसका डोज डिपेंड करता है। So everything there is no standard rule कि आपको कितने supplements लेने हैं, क्या लेने हैं, and आपको so it all depends on your age, the place that you're living in and the kind of lifestyle you're living. Thank you very much for such insightful discussions with us, and thank you very much for giving us your time. I guess that people have a lot of ideas about what Ayurveda actually means and what are the products you are doing. And I wish you all the very best for your son and for future expansion as well. And what was your experience in this discussion? It was nice. It was very comfortable, and it was like just a discussion happening, and this was my favorite topic. So this was a nice time that I spent with you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for your time. So this was the podcast with Dr. Veena Nayak. I guess you had a lot of insights about healthy living and about Ayurvedic medicine and how Ayurveda can help in maintaining our normal healthy life. Please subscribe our channel and also please comment on our comment section so that हमें ये मालूम पड़े कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा और किस टाइप का गेस्ट आप देखना चाहते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में. And also visit our website www.tsbp.in because in our website we keeps you updating about all business related stories and news, and also we cover startups and entrepreneur stories. सिर्फ यही नहीं, आप अपने बिजनेस आइडिया को भी हमारे इस वेबसाइट में पिच कर सकते हैं, एंड थ्रू दैट यू कैन बी विजिबल टू ए लार्जर ऑडियंस एंड यू कैन बी विजिबल टू द वर्ल्ड. आपका बिजनेस आइडियाज अगर अच्छा लगे तो हो सकता है पीपल विल अप्रोच यू फॉर न्यू बिजनेस रिलेटेड एसोसिएशन. So please visit our website www.tsbp.in, and thank you very much for watching this entire podcast and signing it off.